Good test for these two opening batters coming into this tournament right after the IPL. Couple of weeks back, different format of the game. You need to give yourself a chance to spend some time out there in the middle, get adapt to these conditions. Even if there are clouds above us around, with the breeze, it just pushes off. So that's the best thing. So that's the field set up today for Ibrahim to start the proceedings for Afghanistan with the new ball. There's a slip, back offside field. So it's Prabsimran Singh who's going to face the first delivery. We are all first for the very first delivery, and the umpire says play. Here's the back of the length, gets off the mark. India are on their way. Second game. Well, the Afghanistans, it'll be a good test for them, isn't it? What a shot that is. Well, you could have a look at that all 7 days of the week. Such a classical cover drive. Gets his first boundary. Prabsimran Singh, runs are flowing for India. Pitched up delivery, driven handsomely. Couple of steps down the ground. That looks crystal clear. What a look that was. Make it another boundary. Tatsu outside the off stump on that occasion for Prabsimran Singh. Look at where he stands outside the crease, and then with on offer one in from Afghanistan. There you go. Throws the kitchen sink at it, and he collects another boundary. You're not to stop this young kid if you keep bowling that length outside the off stump. Another boundary. Once again, lot of width. And he flashes it outside the off stump. And if you're bowling at Vaibhav Suryavanshi, you can't give width Iran, because he loves the offside. He has developed the offside well. Oh, once again. One bounce, 4. Width on offer once again from Abdullah. And Vaibhav Suryavanshi, no need invitations for him when there's width on offer on the offside. That's another boundary. Well, that's his 4th boundary, and all 4 boundaries coming on the offside. So that's a story to tell you. That's much. He has grown up as a kid. He has got to that level of maturity, adapting to the conditions. Poor bowling. This is not good at all. You know where the batter's stronghold is, and you keep bowlers. Beautiful. Just a punch off the back foot. The outfield will do the rest. Make it another boundary. A lovely batting. This is very good batting. Margin errors on this surface. And there you see good of meat from Prabsimran Singh. Leans on it nicely. He stands a little outside the crease, the batting stance. Helps it along nicely. Gets the outside edge. Valiant effort, but goes in vain. Is what we... शॉर्ट आर्म जैब तो नहीं है, लेकिन ऐसे तो शॉट मार सकते हैं. 50 रन पूरे इंडिया ये के. देखिए, स्टंप माइक्रोफोन जो होता है, वहां से प्लेयर्स की आवाज हमारी तरफ आती है. लगता है कि हमारी आवाज उनकी तरफ जा रही है उस स्टंप माइक्रोफोन से, क्योंकि ये है प्रॉपर पुल शॉट. हल्की धीमी आई गेंद, इसीलिए करारा शॉट नहीं लगा है. लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं, इनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया है. ये मैटर ऑफ टाइम है, ये लगातार ये शॉट खेलते रहेंगे. ये 13 रन इस ओवर. इसलिए यहां पर अब गौर फरमाना सही है. शुरुआत में एक समय पर 798 भी था, तब मैंने बताया नहीं क्योंकि थोड़ा अजीब हो जाता. ये एक अपील हुई थी बॉलर के द्वारा. देखिए कितना जोरदार अपील. उनको लग रहा है कि ये प्लम लेग बिफोर है.
और ये हम सब ने किया इसलिए। ओह, कड़क कड़क ड्राइव ये सूर्यवंशी के बल्ले से। देखिए ये तो कॉपी बुक ड्राइव है, जैसे मैनुअल में होता है ना कि आप पैर निकालो, सर को बॉल के ऊपर रखो, सब कुछ सही है शॉट में। और ये देखने को मिल रहा है वैभव सूर्यवंशी का ये रूप जो मैंने तो नहीं देखा आईपीएल में। और इस बार फुलिश गेंद थी और वही खामियाजा भुगतना पड़ा है अब्दुल्ला को। वैभव सूर्यवंशी एक और बाउंड्री अर्जित करते हुए। या शॉट्स में भी ऐसे नहीं कि हर बॉल पे बड़ी ड्राइव लगाते, ये बड़ी ड्राइव थी। देखिए कैसे बल्ला उनका पीछे जाता है। उसके पहले जो ड्राइव मारी वो शायद उतनी बड़ी ड्राइव नहीं थी। हवा में लेकिन गैप में भी, और कोई मौका नहीं छोड़ रहे खिलाड़ी। स्वागत है पॉल वलथाटी कॉम बॉक्स में। धन्यवाद यश। जी हाँ, यहाँ पर प्रभसिमरन सिंह ने भी अभी हाथ खोले अपने। थोड़े समय तक नॉन स्ट्राइकर एंड से वैभव सूर्यवंशी शो देख रहे थे, बट यहाँ पर डीप पॉइंट पर फील्डर था, बट जिस तरीके से उन्होंने उस प्लेसमेंट और टाइमिंग ढूंढा, कमाल का ये शॉट। आज एक अलग ही ऑन द अप, इन द गैप, और 4 रन। बेहतरीन प्रभसिमरन। वाह, बेहतरीन शॉट, ये कमाल का यहाँ पर पोजीशन बनाया प्रभसिमरन सिंह ने। इतनी खराब गेंद थी नहीं, लेंथ भी ठीक, लाइन भी ठीक, और सटीक तरीके से उस गैप को ढूंढ निकाला। अब डाले तो कहां डाले अफगानिस्तान के गेंदबाज। सामने है वैभव सूर्यवंशी जो अच्छी गेंदों पर भी चौके मार रहे हैं, और यहाँ पर प्रभसिमरन ने भी उनका रंग पकड़ लिया। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी। दोबारा व्हाट अ शॉट, बेहतरीन शॉट। यहाँ पर हाई फ्रंट एल्बो लाइन, इब्राहिम का वही लाइन जहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है वैभव को, बट लेंथ पीछे खींचा और इस बार अब सेट हो गए वैभव सूर्यवंशी। 43 पर जाके पहुंचे। वैभव सूर्यवंशी क्या खिलाड़ी है। ये उसी तरह की गेंद थी जो प्रभसिमरन ने कट किया था उस गेंद को, और उसी तरह की गेंद पर सूर्यवंशी ने बैकफुट पंच लगा दिया है। तो ये दर्शाता है कि सूर्यवंशी के पास जो फॉर्म है उसे वो पूरी तरह वसूलना चाहते हैं। 4 और जोड़ लीजिए, नहीं, फील्डर मौजूद। सूर्यवंशी अगर गैप में गेंद खेलते हैं तो ऐसा लगता है हर गेंद चौके के लिए जाएगी। प्रभु स्कोर देखिए 74 बिना कोई नुकसान। ये तो एक T20 पावर प्ले के स्कोर के आसपास है। यही खासियत है जब आप इतने एक अटैकिंग बल्लेबाज को मौका देते ओपनिंग करने। ओ, अपील है, अपील है। क्या बल्ला लगा है? जी हाँ, अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले अब्दुल्ला का ये बाउंसर वैभव की विकेट ले गया। और जी हाँ, बिल्कुल एक एंटी क्लाइमैटिक एंड, जब ऐसे प्रतीत हो रहा था कि एक बड़े स्कोर की तरफ दौड़ लगा रहे वैभव सूर्यवंशी। एंगल बदला, वहां पर अब्दुल्ला ने पटकी हुई गेंद रैम शॉट खेलना चाहते थे, खुद को रोक नहीं पाए, और अंत में गेंद या ग्लव या वो बल्ले का ऊपरी हिस्सा छू कर गई और विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत बड़ा विकेट यहां पर अफगानिस्तान के लिए। चारों खाने चित कर दिया था वैभव ने। बहरहाल यहां पर उनको लौटना पड़ेगा। अच्छा कैमियो खेला इन्होंने एक ऐसे सतह पर जहां पर नमी थी, बदली सी छाई हुई है। 44 बनाकर आउट होंगे वैभव। 74 पर 1 भारत। बहुत बड़ी सफलता। 8वें ओवर की पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी को वापस जाना पड़ा पवेलियन की ओर, लेकिन अब क्रीज पर आए हैं प्रभसिमरन सिंह के फ्रेंचाइज ओपनिंग पार्टनर मैं कहूंगा, प्रियांश आर्या। ये दोनों की जो साझेदारियां, ये बेहतरीन गेंद और टाइमिंग भी बढ़िया। इस पर गैप ढूंढ निकाला, अपना खाता खोलेंगे प्रियांश आर्या। और आज एक अलग तरीके के मानसिक स्वभाव के साथ बल्लेबाज उतरे हैं। जो हम पॉजिटिव क्रिकेट की बात लगातार करते हैं पॉल, ये शॉट देखिए, पूरा पैर निकाला और गैप ढूंढ निकाला।
और ये तीनों बल्लेबाजों में देखने मिला है, प्रभसिमरन, वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या। तीनों बल्लेबाज अब अच्छी तरह नई गेंद के विरुद्ध शॉट लगाना वो और बेहतर हो जाता है। डीप स्क्वायर रहेगा था वहां पर, बट मौजूद केवल दर्शक बन के रह जाएगा। उमदा सिक्सर, पटकी हुई गेंद पोजीशन में आए और लीजिए सिक्सर से यहां पर इनके खाते का पहला बाउंड्री। जी हाँ, बिल्कुल लेंथ को काफी जल्दी पिक किया प्रियांश आर्या ने, जैसे कि गेंद के पहले ही अब्दुल्ला ने उन्हें कहा था कि मैं बाउंसर डालने वाला हूं, और पूरे संतुलन में ओह कमाल, क्या शॉट लगाया है प्रभसिमरन सिंह ने। नजाकत भरा ये स्ट्रोक, दर्शनीय। क्या कहेंगे इसके बारे में पॉल? या बिल्कुल पारंपरिक शॉट, यहाँ पर टाइमिंग पर तवज्जो दे रहे। जब आप ऐसे शॉट्स लगाते हैं ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है गेंदबाज को। अब गेंदबाज के पास ज्यादा रफ्तार है नहीं, 125-30 के आसपास वो गेंदबाजी कर रहे। किलोमीटर्स की अगर बात करेंगे तो जब ऐसे आप पूरी तरीके से फ्रंट पैर निकाल के गेंद के ऊपर चढ़कर फ्रंट एल्बो हाई, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा यहां से इन्हें आउट करना। मौके की तलाश थी और वो मौका मिल गया। हवा में खेले उस कवर ड्राइव को और सीधे एक्स्ट्रा कवर के हाथ में। जी हाँ, वही हुआ वहां पर। 3 लगातार डॉट बॉल्स वहां पर अर्जित के गेंदबाज क्रैम्प करके रखा, बट इस गेंद को थोड़ा सा आगे रखा, विवश किया, मजबूर हुए वहां पर प्रियांश आर्या। उनको लगा यहां पर एक बाउंड्री हिटिंग का ऑप्शन है, ठीक से पोजीशन में आ नहीं पाए। गेंद ने हल्का सा वहां पर हरकत किया और काफी था वहां पर। बहुत अच्छे टच में थे। बहरहाल उनको लौटना होगा 8 बनाकर। और जब एक बाउंड्री हिटर प्रियांश आर्या जैसा लगातार 3 डॉट बॉल खेल जाता है तो कहीं ना कहीं मन में ये विचार आता ही है कि अब मैं एक चौका लगा के वो प्रेशर थोड़ा रिलीज कर लूं। मैन इन फॉर्म, क्या शुरुआत। आज इतने कमाल के स्ट्रोक्स देखने मिले हैं पॉल की हर गेंद पर एक ही लफ्ज आता है, उफ। और ऐसे लग रहा है हर एक बल्लेबाज अंदर से ही सेट होके आया है। पहली गेंद पर यहाँ पर पोजीशन में आना, शॉट देखिए, वो मधुर आवाज, बल्ले और गेंद का बिल्कुल सही वक्त पर वो हवा में, लेकिन गैप में भी लग रही है ये गेंद और चौका मिल जाएगा इसी के साथ। प्रभसिमरन सिंह अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। यह बाउंड्री हिटर है प्रभसिमरन सिंह और काफी समय के बाद यहाँ पर बाउंड्री जड़ते हुए आजादी मिली वहां पर प्रभसिमरन को। पर ये और भी बढ़िया और बेहतर, और इस चौके के साथ प्रभसिमरन सिंह के 50 रन पूरे होते हुए कमाल की पारी खेली है। जहां सबकी नजरें वैभव सूर्यवंशी पर थी, प्रभसिमरन सिंह ने शांति से अपना काम कर दिया। और ये बहुत बढ़िया तरीके से दिशा दी है इसे शॉर्ट थर्ड की तरफ। 2 रन के लिए वापस, नहीं, मिसफील्ड। और चौका गया है या अंपायर का क्या होगा इशारा, एक बार देखना होगा। चौका, कुछ बहुत ही बढ़िया शॉट। एक और टिपिकल प्रभसिमरन शॉट। आपने बहुत पहले उनको देखा एक शॉट मारते हुए और कहा कि थोड़ा वीरेंद्र सहवाग की तरह स्टाइल है इनकी, और जी हाँ बिल्कुल है। पैर ज्यादा यूज करते, वीरू इतना नहीं करते थे, लेकिन जो बल्ला चलता है वो उनकी तरह ही चलता है, पूरा एकदम तहस नहस। शायद थी ड्राई पिच और फिर बारिश की वजह से यहाँ बाउंड्रीज की बौछार हो रही है। जी हाँ, और फिर से बहुत ही अच्छा शॉट है। आज बैटिंग का जो मुजाहरा भारतीय टीम ने किया, भारतीय टीम ने, वो बहुत ही टॉप ड्रॉ रहा है। ये दूसरा इनका स्ट्रेट ड्राइव, ये तो सिर्फ संपर्क किया। देखेंगे ज्यादा बैकलिफ्ट थी नहीं, 3-4 फीट का बैट स्विंग था, दैट्स इट। 1 जुलाई से डरहम में
10 बजे से, और 11 को 5वां T20I मुकाबला खेला जाएगा साउथहैम्पटन में, और फिर उसके बाद ODI श्रृंखला 14 जुलाई से। ज्यादा एंगल से आता है। फुल टॉस, और दिया वो जवाब जिसकी जरूरत थी। प्रभ सिमरन के नाम एक और चौका। कि एक चीज तो है शॉट्स मारना, अच्छी टाइमिंग के साथ मारना, लेकिन गैप में मारना ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो भी आज शॉट्स खेले हैं वो बिल्कुल गैप में मारा। उनको पता था कि ये अगर जितना सीधा स्टंप के करीब मारेंगे तो फुल वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि पीछे आप फील्ड पर एक और फुल टॉस, एक्शन रीप्ले पिछली गेंद का, क्योंकि बाउंड्री भी वहीं मिली है। देखिए T20 क्रिकेट में लेग स्पिन करना और 50 ओवर्स क्रिकेट में लेग स्पिन करना बहुत उसमें फर्क आता है। इसमें ये उन्होंने बैक ऑफ द हैंड जो गूगली या टॉप स्पिन की कोशिश की। T20 क्रिकेट में हर बॉल पे बल्लेबाज चौक के छक्के। विकेट। प्रभ सिमरन सिंह शतक जड़ सकते थे, लेकिन यहाँ इमरान मीर कप्तान ने एक बहुत अहम विकेट चटका दिया है। भारतीय टीम का प्रभ सिमरन सिंह लौट रहे हैं, और यहाँ पर तो खुद को ही कोसेंगे प्रभ सिमरन सिंह, क्योंकि ऐसे कुछ खास थी ही नहीं वो गेंद। बिल्कुल साधारण सी गेंद, उसे रैम्प शॉट खेलने की सोच, शायद ग्लव को चूम कर गई गेंद और विकेट कीपर ने बचा कुचा काम कर दिया। बहुत ही अच्छी तरीके से एक बड़ी पारी वहां पर बुना रहे थे प्रभ सिमरन। बहरहाल इनको हताश होकर लौटना होगा 84 पर। 167 ने उस मिडिल ओवर्स फेज में व्यतीत किया था, बट यहाँ पर खास करके एक नए बल्लेबाज को इनिंग्स के आगाज में सिंगल्स डबल्स लेने के लिए इतना प्रॉब्लम तो नहीं होगा। खलील गुरबाज में और यहाँ इमरान मीर कप्तान फिर आ गए हैं बॉलिंग करने। वैसे तो टॉप 3 पोजीशन में बैटिंग करते हैं, लेकिन आज एक विकेट भी चटका लिया है। और ये ऋतुराज गायकवाड़ शायद अंपायर की तरफ देख रहे थे एक आशा से, शायद वहां पर ऑफ द फील्ड जाने का वहां पर उनको वो इशारा मिले, और या बिल्कुल वही हुआ। और ये हमेशा एक मुश्किल सी एक बात रहती है बल्लेबाजों के लिए। आप सेट हो गए, सतह के कंडीशंस का पूरी तरीके से आपने अंदाज ले लिया, बट यहाँ पर जैसे ही बारिश हो जाती है फिर आपको दोबारा एक नई तरीके से पारी का आगाज करना होगा। ग्राउंड्समैन और काफी हवा है वहां पर। स्टैंड्स का जो स्ट्रक्चर है काफी सपाट सा है, ज्यादा कुछ ऐसे इरेक्ट स्ट्रक्चर्स नहीं है वहां पर, उसी के चलते बहुत मुश्किल होगा। बट फिलहाल बहुत ही उम्दे पारी के चलते बहुत ही एक मजबूत स्थिति में भारतीय टीम। पिछले मैच में एक स्लो पिच पर 270 के आसपास उन्होंने स्कोर बनाया। टॉस पर तिलक वर्मा ने कहा कि 290 के आसपास एक पार स्कोर मानेंगे, बट कंडीशंस का बहुत ही उम्दा तरीके से इस्तेमाल किया भारतीय बल्लेबाजों ने। पहले वैभव सूर्यवंशी, फिर उसके बाद प्रभ सिमरन सिंह, और बहुत ही एक मजबूत स्थिति में अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजों के पास वो तीखापन आज नजर नहीं आया। एक ऐसे सतह पर जहां पर नमी थी, हरकत कर रही थी गेंद, और जैसे स्पिनर्स आया और अच्छा कमबैक करके दिखाया, खास करके खलील ने, मीर ने एक विकेट चटकाया। कसा हुआ गेंदबाजी करने का मौका मिला उन्हें, और सिंगल्स को रोक रहे थे। उसी के चलते जो प्रोजेक्टेड स्कोर जो एक वक्त पर 450-500 के करीब दिख रहा था, वो 300-350 के करीब। बहरहाल यहाँ पर वर्षा के कारण प्ले रुक गया 174 पर 3 25वें ओवर के आसपास। बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी करके दिखाया। और ये शुरुआत की थी वैभव सूर्यवंशी और प्रभ सिमरन सिंह ने, काफी तेज शुरुआत की थी। उसके बाद आए प्रियांश आर्य, ज्यादा कुछ कर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे अब और जल्द ही वापस आएंगे। खलील गुरबाज गेंद बिल्कुल सही लेंथ और टप्पे पे वहां पर गेंदबाजी खलील के द्वारा। ये आगे अब ये तो साफ हो गया कि 49 ओवर्स का ये मुकाबला तो वर्षा आदित्य मुकाबला अब हो गया है, और वर्षा के पहले अच्छे टच में नजर आ रहे थे खास कर। चलिए यहाँ पर
कोई भी मौका छोड़ेंगे नहीं उप कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। पिछले मैच में शतक जड़ना, इस बार जैसे ही खराब गेंद आया पोजीशन में देखिए, जब आप अच्छी बल्लेबाजी करते रहते तो लेंथ को बहुत जल्दी पड़ते। वर्षा के कारण कोई भी यहाँ पर उनके लय में प्रॉब्लम नहीं। एक चुनौती तो यकीनन होगी क्योंकि दोनों बल्लेबाजों को दोबारा यहाँ पर रीसेट करना होगा और बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर रीसेट हुए उप कप्तान ऋतुराज और खुद को एक तरीके से यहाँ पर पहले इस शॉट की तारीफ, शानदार तरीके से पोजीशन में आना, इनफ ताकत, इनफ बैक स्पिन उस गेंद के पीछे की बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड, ज्यादा कुछ गैप था नहीं वहां पर, बिल्कुल सटीक तरीके से भेदा। और अगर देखें तो जिस तरीके से स्लैश किया उन्होंने ऑफ साइड पे, काफी फील्डर्स है, पॉइंट भी था वहां पे, लेकिन तिलक वर्मा ने बिल्कुल गैप में प्लेस की है ये शॉट। खेलते हैं लेकिन कभी कभी वो होता है ना, जब वक्त आता है उनको लगता है अभी गियर बदलना चाहिए। और 4 रन बोनस आज काफी ऐसे मिले हैं, एक्चुअली 3 बाउंड्रीज ऐसे मिले, एक तो ओवरथ्रो से मिला, ऐसे ये दूसरा मिसफील्ड है बाउंड्री की तरफ। थोड़ा स्ट्राइक रेट बढ़ता हुआ तिलक वर्मा का। देखा जाए तो ये गेंद पर चौका वैसे ही लगना चाहिए था, एक फुल टॉस थी, उसे एक जेंटल सा ड्राइव किया डाउन द ग्राउंड, और जिसकी आप बात कर रहे थे तिलक वर्मा अपना वक्त लेते, समय लेते से भरा हुआ सॉफ्ट हैंड से खेला, 2 रन मिलेंगे यहां पर। कमाल की पारी, उपकप्तान बनाया गया। एक पल को ये टीम में भी नहीं थे, रियान पराग की उस इंजरी के चलते इन्हें मौका मिला और मौके का पूरा फायदा। जी हाँ, बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर। 219 यहाँ पे भारत ने बना लिए हैं और काफी अच्छी यहाँ पे टारगेट बना सकते हैं, सेट कर सकते हैं अफगानिस्तान ही के खिलाफ। पिछले मैच में शतक जड़ा था ऋतुराज ने। और लगता है वहां पे ओवरथ्रो हुआ है, उसी के चलते 4 रन मिले हैं। यहां देखिए क्विक सिंगल की कोशिश थी, वो तो पूरा कर लिया, पर वहां पे कोई रोक ही नहीं सका गेंद को। और यहां पे और भी आत्मविश्वास को चकनाचूर करते हुए तिलक वर्मा 4 रन अपने नाम। अब जैसे यहाँ पर हर एक ओवर में अगर आपने एक लूज बॉल कर दिया है तो फिर दबाव कैसे बनेगा। आपने 2 डॉट बॉल किया, बट उसके बाद देखिए एक बिल्कुल कमजोर गेंद, पॉइंट और थर्ड के बीच वो गैप को बिल्कुल सही तरीके से ढूंढ निकाला। तो जो ओवर मात्र 2 रन अर्जित किए थे भारतीय टीम, अब उस चौके के बदौलत बन गया 6। तो दोबारा आप करंट रन रेट के करीब हो। ओ क्या खूबसूरत शॉट है ये, 1 बाउंस बाउंड्री ऋतुराज गायकवाड़ के नाम। तिलक की बात जरूर करेंगे, पर फिलहाल प्रशंसा करनी होगी ऋतुराज की। और यही है कमजोरी है अफगानिस्तान की। अगर तेज गेंदबाजों की अगर बात करेंगे तो सफी अब गेंदबाजी करे, ज्यादा कुछ गति है नहीं इनके पास। मिड ऑफ था 30 गज के दायरे के अंदर, तो देखिए कितने आसानी से उस मिड ऑफ को टपाया। ऐसे कुछ खास ओ हवा में गेंद है, मौका बन सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ 66 रन बनाकर जाना होगा। आखिरकार वो सफलता मिल चुकी है। और जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर बड़ा विकेट का यहाँ पर पतन होते हुए 66 पर ऋतुराज गायकवाड़ की पारी रोक दी है सफी ने। ऐसे कभी लगा ही नहीं कि ऋतुराज कोई ट्रबल में थे, गति में परिवर्तन पड़ लिया था, बट बहुत ही अक्रॉस द लाइन चले गए वहां पर ऋतुराज गायकवाड़। गेंद क्या कुछ खास घुमाव लिया नहीं, बिल्कुल सीधे आई गेंद, टॉप एज लगा, थोड़ा ड्रामा हुआ, बट बड़े आसानी से उसे सेकेंड अटेम्प्ट पर पकड़ा हसन ने। ये खुश है कि फाइनली कुछ रिवॉर्ड मिला, एक कंसिस्टेंट गेंदबाज के रूप में सामने आया। बट एक शानदार पारी दोबारा 66 पर आउट ऋतुराज गायकवाड़। बीच हुई थी, सफी ने उसे तोड़ दिया है। बड़ी अपील है और जी हां,
मिल गई है विकेट। बैक टू बैक विकेट्स यहां सफी के लिए और आयुष बदोनी गोल्डन डक पर यहां पे बाद हुए हैं। वो क्या कमबैक करके दिखा रहे हैं यहाँ पर अफगानिस्तान के गेंदबाज आयुष बदोनी। बहुत समय तक पैड बांधकर उधर डगआउट में थे। पहली गेंद पर बैंग इन द एक्शन, इनसाइड द लाइन खेल बैठे, थोड़ा सा लूज, वो अगला पैर निकला ही नहीं लाइन की तरफ। गेंद बिल्कुल बल्ले के आउटसाइड एज को छू कर गई और काफी था वहां पर। इमीडिएटली उस अपील में हामी भरी अंपायर ने। लोअर ऑर्डर मिडिल ऑर्डर के रूप में इन्हें देख रहे, पहले ही गेंद पर आउट हुए। 245 पर समझ सकते हैं कि बहुत अच्छे ले में नजर आ रहे थे जब यहाँ पर लेजी फील्डिंग, मोमेंटम थोड़ा सा वहां पर खींच लिया था अफगानिस्तान अपने खेमे की तरफ, बट यहाँ पर खराब फील्डिंग इब्राहिम के द्वारा। नहीं चाहते कि यहाँ पर तिलक वर्मा जो बाउंड्रीज ढूंढ रहे उनको ऐसे भेंट के रूप में यहाँ पर रन्स दे दे। बिल्कुल, ये बस 2 रन होने चाहिए थे ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे इब्राहिम ने रोकने की कोशिश तो की पर सही कोशिश करके, अच्छी कोशिश करके, ये इनका हिटिंग जोन है भाई, सीधा मारना। पिछले मैच में भी अच्छा एक पारी खेले थे, गेंदबाजी बहुत की। मैं बहुत ही इनसे एक्चुअली प्रभावित हूं। ये गैप हमने देखा है, ऋतुराज गायकवाड़ ने भी ये खोजा था, प्रभ सिमरन भी यहाँ पर बहुत खेले हैं, और ये तो इनका सबसे फेवरेट हिटिंग एरिया है, सीधा वाला फ्रंट वी कर। ये लगता है कि बहुत ही अच्छा शॉट, ये पावर से भरपूर, और वापस वो गैप जो भारतीय टीम लगातार ढूंढ रही है, फिर से उन्होंने ढूंढा। बहुत ही बढ़िया शॉट। यहां थोड़ी आलोचना गेंदबाज की ओवर पिच डिलीवरी, और जमीन तले फर्श को चूमते चूमते इस एरिया में जोन शिकार और शिकारी के बीच जो जद्दोजहद है उसमें कोई भी नहीं जीता। बस भारत को 5 मुफ्त के रन मिल गए। काफी मुफ्त के रन मिले हैं भारत को, इसीलिए भारत को ज्यादा अति कोशिश करने की भी जरूरत नहीं रही है। यही भी रोकना चाहिए था कीपर को। डाउन द ग्राउंड गए हैं शेडगे और फील्डर को पार किया है। शायद प्रयास में थोड़ी गुंजाइश छोड़ दी, लेकिन 6 रन मिल जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, प्रयास में थोड़ी सी गुंजाइश थी। बहुत आसान है इधर बैठ के कहना, लेकिन अगर बाउंड्री रोप पे चिपक कर रहते तो शायद बेहतर एक चांस होता ये पकड़ने के लिए। ये अंदर आ गए, बहुत परेशान करती है। ये हवा में चली गई है, लेकिन शायद दूर नहीं और सीधे हाथ में। छक्के ज्यादा लगे नहीं है, लेकिन एक यहां पर छक्का मारने के प्रयास में आउट हो गए तिलक वर्मा, कप्तान। जी हां, अब्दुल्ला मिर्जाई को मिलता हुआ अपना 3रा विकेट। रफ्तार बढ़ाने की ताक में तिलक वर्मा अपना विकेट खो बैठे हैं। शॉट ऑन था, बिल्कुल शॉट ऑन था, बस वो दूरी नहीं प्राप्त कर पाए। और बाउंड्रीज भी इतनी छोटी है नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं 2-2, 3-3 रन काफी बन रहे हैं बाउंड्री पे। देखिए बॉलर्स को भी थोड़ा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अच्छी पारी खेली, बिल्कुल उनके T20 अंदाज में नहीं थी, लेकिन पिछले मैच की कर वापस गए पवेलियन की ओर। नए बल्लेबाज अनुकूल रॉय आउट हुए। ओह, हवा में गेंद और लंबा छक्का। 3रा छक्का शेडगे के बल्ले से। माफ कीजिएगा, भारत के लिए 3रा छक्का। जी हाँ, सूर्यांश शेडगे बहुत ही एक खास ऑलराउंडर, 8-9 ओवर करने की काबिलियत रखते हैं, और अगर ऐसे कंसिस्टेंटली ऐसे हिट्स। एक और धीमी गेंद हवा में, कैच का मौका। जी नहीं, गैप में जाती हुई। बाहरी किनारा था ये, संपर्क ठीक हुआ नहीं था, संतुलन में नहीं थे, और चौके के साथ और हवा में शेडगे आउट। कुछ चटपटा ट्राई करने की कोशिश की। 4था विकेट है अब्दुल्ला के लिए।
और एक ऐसा शॉट, ऐसा पल जब संपर्क हुआ तो सभी को ऐसा लगा कि यहाँ पर एक और चौका जड़ा सूर्यांश ने। बिल्कुल हम सराहना करने ही वाले थे उस शॉट का, बट देखिए यहाँ पर एंटी क्लाइमैटिक एंड, वहां पर बिल्कुल सही रूप में उन्होंने उस शॉट थर्ड को चयन किया। अनफॉर्चुनेट एंड उनकी पारी को 40 पर खेल रहे थे, पूरी तरीके से सेट थे एक और ताबड़तोड़ फिनिश के लिए। युवा बल्लेबाज, युवा ऑलराउंडर, और ये 5 विकेट अब्दुल्ला के नाम। मेहनत की है, जुझारूपन, परिश्रम और सफलता। 5 विकेट यहां पर चटकाते हुए अब्दुल्ला। अरशद ने बिल्कुल अक्रॉस द लाइन खेला, बट इन्होंने बिल्कुल सही लाइन, सही लेंथ, अटैकिंग द स्टंप्स, यू मिस आई हिट अब्दुल्ला, और बिल्कुल हिट साबित हो रहे यहां पर अफगानिस्तान के लिए। ओह, कमाल की टाइमिंग उस पर, और प्लेसमेंट भी उतनी बढ़िया। चौके के साथ शुरुआत इस आखिरी ओवर की। या इस बार फिर से स्लैश किया, 2 फील्डर्स। ओह, बढ़िया कैच, व्हाट अ कैच। दौड़ते हुए अपनी दाई ओर डाइव लगानी पड़ी थी, और विप्रज निगम का ये छोटा सा कैमियो इस विकेट के साथ समाप्त होता हुआ। और ये साफ संकेत है कि यहाँ पर गेंद जैसे पुरानी हो रही, थोड़ी सी थमके आ रही है। विपराज निकम जो अब आएंगे थोड़ी देर में गेंदबाजी करना पसंद करेंगे, ऐसा स्लोइश नेचर इस सत्ते का। बट ये शानदार जुझारूपन वहां पर दिखा शॉट थर्ड पर। कैच के लिए गए क्योंकि जानते कि आउटफील्ड बहुत ही फास्ट, रोक नहीं सकते आप शॉट्स को। निकम होगा कि 11 नंबर पर वो आएंगे बल्लेबाजी करने, और प्ले एंड मिस, और ये डॉट बॉल। तो 349 पे 9 पर पारी सिमटती हुई, समाप्त होती हुई। 350 रनों का लक्ष्य अफगानिस्तानी के लिए। या क्योंकि एक वर्षाबाधित मुकाबला है, 49 ओवर में अफगानिस्तान ए को 350 रन बनाने होंगे। बहुत ही एक ओडीआई सीरीज में आपका स्वागत है। ये दूसरा मैच खेला जा रहा है अफगानिस्तान ए और इंडिया ए के बीच। पहली इनिंग्स की समाप्ति पर भारत ने 49 ओवर में 349 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर, लेकिन फिर दावा बोला बारिश ने। पहले नजर डाल लेते हैं स्कोर कार्ड पर कैसे गुजरा था वो फर्स्ट इनिंग्स, जहां प्रभसिमरन सिंह ने 84 बनाए थे 69 गेंदों में, और साजिदा निभाई थी शुरुआती। ऑन द मनी, क्या टप्पा पड़ा, क्या स्विंग मिला। शायद जो आप कह रहे वो बात सही है, क्योंकि मूवमेंट काफी ज्यादा लग रही है, हवा के साथ वो स्विंग भी हुई है। पिछले मैच में भी हमने देखा अंशुल। सुंदर ड्राइव एक बार फिर से हसन के बल्ले से उभरता हुआ। पहली बार बैकफुट पंच था, इस बार फ्रंट फुट का प्रयोग। एग्जैक्टली प्रभसिमरन सिंह की तरह ऑन दी। थोड़ा फुलिश गए, और स्ट्रेट ड्राइव के तहत एक और बाउंड्री हसन को मिलती हुई। एक जो आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में एक चीज जो है सबके बहुत ही डीप अंदर वो बस गई है कि अगर उनके खिलाफ रन बन गए ना, तो पहली सोच ये होती है कि रन रोकने हैं। ये चौके से डरे ना, और ये पुल किया है और गया ऑल द वे। तो बिल्कुल अपना आउटस्विंग भूल गए अंशुल कंबोज, और इस बार वो लाइन में चूके हैं। प्रभसिमरन ने हल्की सी रोक जमाई, लेकिन उतनी नहीं, मिल गई एक और बाउंड्री, लेग बाय शायद। ये रोकना चाहिए। और पिछले मैच में भी मैंने देखा प्रभसिमरन ने काफी कलेक्शंस मिस किए हैं। ये करीब था, ऐसे नहीं था बहुत दूर, शायद बाउंस इतना इजी नहीं था, उनके सामने गिरी, लेकिन ये रोकना चाहिए। पूरे 4 रन गए। कमाल का शॉट, सफाई के साथ खेला गया है। बहुत ही इंप्रेसिव शुरुआत है अफगानिस्तान की। अच्छे बॉल्स पर चौके मारे हैं इन्होंने, एक पुल के द्वारा, 1-2 कवर ड्राइव। ये थोड़ी मुझे लगता है कि वाइड गेंद थी, जगह मिल गई उनको। कमाल का शॉट, लेंथ को जल्दी पिक किया, और इस चौके के साथ 50 रन पूरे।
और मेरे साथ कॉम बॉक्स में स्वागत करूंगा मैं पॉल वलथाटी का। धन्यवाद यश। जी हाँ, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर यहाँ पर शुरुआत की अफगानिस्तान ए के टीम ने आक्रामक अंदाज यहाँ पर अपनाना, एक अटैकिंग मंसूबे से उतरे बल्लेबाजी करने, लेग्स पर प्रहार करना होगा उन्हें। और इस बार खड़े खड़े डाउन द ग्राउंड बड़ा हिट कप्तान के बल्ले से। क्या कमाल का ये शॉट खेला है इमरान ने। वो शानदार शॉट ये इमरान के द्वारा, और ये एक ऐसे पिच है जहां पर आप स्टेप एंड हिट कर सकते, स्टैंड एंड डिलीवर स्टफ। अभी ये सवाल होगा, एक इम्तिहान होगा यहाँ पर गेंदबाजों का कि इस बार कैरी करेगी। विप्रज निगम ने वो कैच पूरा किया। अरशद खान को अपने ओवर की आखिरी गेंद पर सफलता मिलती हुई और पहला विकेट अफगानिस्तान ए के लिए, बड़ा विकेट इंडिया ए के लिए। यह बहुत ही अच्छा विकल्प का वहां पर इस्तेमाल किया अरशद ने, एक ऐसे सतह पर ज्यादा जहां पर उछालने, बाउंसर अमूमन एक बहुत तीखा विकल्प रहता है। अरशद उम्दा तरीके से उस गेंद को बिल्कुल बॉडी पर उन्होंने दिशा दिया, और स्विमिंग पूल तब ठीक है जब डीप फाइन पर कोई भी फील्डर नहीं है। यहां पर डीप फाइन लेग पर फील्डर सजाया था, बिल्कुल उनके पेट में मार बैठे विपराज निगम थोड़े से ऑफ बैलेंस हो रहे थे, उसी के चलते वो गेंद को छोड़े और बड़े आसानी से फिर सेकेंड अटेम्प्ट में उसे स्वीकारा। एक कैमियो खेल के लौटेंगे हसन 34 बनाकर। अफगानिस्तान है 63 पर 1। गायकवाड़ ने फॉर्म को बरकरार रखा, पिछले पैर पर लगा, और चलिए यहां पर अपील में हामी भरते हुए, और कभी कभी सतह पर घुमाव ना होना ये भी एक अच्छी चीज है। यहाँ पर अनुकूल रॉय ये बिल्कुल साबित करते हुए। जी हाँ, बिल्कुल गेंद सीधी रही, ज्यादा घुमाव मिला नहीं, जिसकी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले। और क्रीज में फंस गए खालिद, ना आगे आए ना पीछे गए, और पीछे के पैर पर जब लगता है तो अक्सर अंपायर की उंगली उठने में देरी नहीं होती। इस बार ओ पॉल, करीबी मामला था ये। ट्रैजेक्टरी के चलते वहां पर बैकफुट पर गए, फ्रंट फुट पर रहना था। बल्ले की इधर देख रहे थे अंदरूनी किनारा लगा कि नहीं, वो केवल खालिद ही जानते। 2 पर जितने रन इन्होंने रेड बॉल में बनाए तब थोड़े तकलीफ में थे, लेकिन इस शॉट पर, इस जगह पर कौन सा फील्डर तैनात करेंगे आप? लीडिंग एज, उनको छकाया इस बाउंसर के साथ, लेकिन किसी तरह इमरान को 4 रन मिल गए। थोड़ी सी वहां पर तकनीकी खामी भी नजर आ रही है अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के, जो छोटी गेंद के विरुद्ध वो कैसे खेलते। पहले वहां पर हसन आउट हुए, और अब यहाँ ये वो तेज गेंद जिसकी हम बात कर रहे थे, लेकिन जितना तेज बल्ले पे आई उससे ज्यादा तेज ये चौके की तरफ गई। जी हाँ, इस बार ट्रैजेक्टरी बहुत ही फ्लैट किया था वहां पर आयुष बदोनी ने, और लेंथ भी काफी छोटी रखी थी, पहचान लिया था वहां पर। और ये एक ऐसे बल्लेबाज है, जैसे आपने इसी आए थे इनिंग्स में कहा कि इनका बहुत शानदार फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड ये दर्शा रहा है अटैकिंग शॉट्स खेलकर। ये एक आक्रामक शॉट बिल्कुल तीर की तरह जाता हुआ अपने निशाने की ओर, बाउंड्री मिलेगी। पिच अब थोड़ा सा स्लो हो गया है, तो बहुत समय था उनको बैकफुट पे रुके हुए थे बॉल आने के लिए। बॉल टर्न हुआ, और क्योंकि इतने पीछे गए थे क्रीज में कि उनको समय मिल गया। एक ऐसी दिशा में बॉल भेजा है जहां आमतौर पे फील्डर होंगे ही नहीं। चालाक ये शॉट बाहर आई बाउंड्री की। इस लाइन का एक प्रॉब्लम यही होता है कि स्वीप शॉट्स बहुत लगने लगते हैं, और विकेट लेने के चांसेस इस लाइन से कम हो जाते हैं। लेकिन मैं समझ सकता हूं क्यों इस तरह। ओह, कमाल की टाइमिंग उस पर, और प्लेसमेंट भी उतनी बढ़िया। चौके के साथ शुरुआत इस आखिरी ओवर की। इस बार फिर से स्लैश किया, 2 फील्डर्स। ओह, बढ़िया कैच, व्हाट अ कैच। दौड़ते हुए अपनी दाई ओर डाइव लगानी पड़ी थी, और विप्रज निगम का ये छोटा सा कैमियो इस विकेट के साथ समाप्त होता हुआ। और ये साफ संकेत है कि यहाँ पर गेंद जैसी पुरानी हो रही, थोड़ी सी थमके आ रही है।
विपराज निकम जो अब आएंगे थोड़ी देर में गेंदबाजी करना पसंद करेंगे, ऐसा स्लोइश नेचर इस सत्ते का। बट ये शानदार जुझारूपन वहां पर दिखा शॉर्ट थर्ड पर, कैच के लिए गए क्योंकि जानते कि आउटफील्ड बहुत ही फास्ट, रोक नहीं सकते आप शॉट्स को। निकम होगा कि 11 नंबर पर वो आएंगे बल्लेबाजी करने और प्ले एन मिस और ये डॉट बॉल। तो 349 पे 9 पर पारी सिमटती हुई समाप्त होती हुई 350 रनों का लक्ष्य अफगानिस्तानी के लिए। या क्योंकि एक वर्षाबाधित मुकाबला है, 49 ओवर में अफगानिस्तान ए को 350 रन बनाने होंगे। बहुत ही एक ओडीआई सीरीज में आपका स्वागत है। ये दूसरा मैच खेला जा रहा है अफगानिस्तान ए और इंडिया ए के बीच। पहली इनिंग्स की समाप्ति पर भारत ने 49 ओवर में 349 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर, लेकिन फिर दावा बोला बारिश ने। पहले नजर डाल लेते हैं स्कोर कार्ड पर कैसे गुजरा था वो फर्स्ट इनिंग्स, जहां प्रभसिमरन सिंह ने 84 बनाए थे 69 गेंदों में और साजिदा ने निभाई थी शुरुआती। ऑन द मनी, क्या टप्पा पड़ा, क्या स्विंग मिला। शायद जो आप कह रहे वो बात सही है, क्योंकि मूवमेंट काफी ज्यादा लग रही है, हवा के साथ वो स्विंग भी हुई है। पिछले मैच में भी हमने देखा अंशुल सुंदर ड्राइव एक बार फिर से हसन के बल्ले से उभरता हुआ। पहली बार बैकफुट पंच था, इस बार फ्रंट फुट का प्रयोग। एग्जैक्टली प्रभसिमरन सिंह की तरह ऑन दी। थोड़ा फुलिश गए और स्ट्रेट ड्राइव के तहत एक और बाउंड्री हसन को मिलती हुई। एक जो आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में एक चीज जो है सबके बहुत ही डीप अंदर वो बस गई है कि अगर उनके खिलाफ रन बन गए ना तो पहली सोच ये होती है कि रन रोकने हैं, ये चौके से डरे ना, और ये पुल किया है और गया ऑल द वे। तो बिल्कुल अपना आउटस्विंग भूल गए अंशुल कंबोज, और इस बार वो लाइन में चूके हैं। प्रभसिमरन ने हल्की सी रोक जमाई लेकिन उतनी नहीं, मिल गई एक और बाउंड्री, लेग बाय शायद। ये रोकना चाहिए। और पिछले मैच में भी मैंने देखा प्रभसिमरन ने काफी कलेक्शंस मिस किए हैं। ये करीब था, ऐसे नहीं था बहुत दूर, शायद बाउंस इतना इजी नहीं था, उनके सामने गिरी, लेकिन ये रोकना चाहिए। पूरे 4 रन गए। कमाल का शॉट, सफाई के साथ खेला गया है। बहुत ही इंप्रेसिव शुरुआत है अफगानिस्तान की, अच्छे बॉल्स पर चौके मारे हैं इन्होंने, एक पुल के द्वारा, 1-2 कवर ड्राइव। ये थोड़ी मुझे लगता है कि वाइड गेंद थी, जगह मिल गई उनको। कमाल का शॉट, लेंथ को जल्दी पिक किया और इस चौके के साथ 50 रन पूरे। और मेरे साथ कॉम बॉक्स में स्वागत करूंगा मैं पॉल वलथाटी का। धन्यवाद यश। जी हाँ, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर यहाँ पर शुरुआत की अफगानिस्तान ए के टीम ने, आक्रामक अंदाज यहाँ पर अपनाना, एक अटैकिंग मंसूबे से उतरे बल्लेबाजी करने, लेग्स पर प्रहार करना होगा उन्हें। और इस बार खड़े खड़े डाउन द ग्राउंड बड़ा हिट कप्तान के बल्ले से। क्या कमाल का ये शॉट खेला है इमरान ने। वो शानदार शॉट ये इमरान के द्वारा, और ये एक ऐसे पिच है जहां आप स्टेप एंड हिट कर सकते, स्टैंड एंड डिलीवर स्टफ। अभी ये सवाल होगा, एक इम्तिहान होगा यहाँ पर गेंदबाजों का कि इस बार कैरी करेगी, कैरी करेगी। विप्रज निगम ने वो कैच पूरा किया। अरशद खान को अपने ओवर की आखिरी गेंद पर सफलता मिलती हुई और पहला विकेट अफगानिस्तान ए के लिए, बड़ा विकेट इंडिया ए के लिए। यह बहुत ही अच्छा विकल्प का वहां पर इस्तेमाल किया अरशद ने, एक ऐसे सतह पर ज्यादा जहां पर उछालने, बाउंसर अमूमन एक बहुत तीखा विकल्प रहता है। अरशद उम्दा तरीके से उस गेंद को बिल्कुल बॉडी पर उन्होंने दिशा दिया, और स्विvel पुल तब ठीक है जब डीप फाइन पर कोई भी फील्डर नहीं है। यहां पर डीप फाइन लेग पर फील्डर सजाया था, बिल्कुल उनके पेट में मार बैठे विपराज निकम। थोड़े से ऑफ बैलेंस हो रहे थे, उसी के चलते वो गेंद को छोड़े और बड़े आसानी से फिर सेकेंड अटेम्प्ट में उसे स्वीकारा। एक कैमियो खेल के लौटेंगे हसन 34 बनाकर,
अफगानिस्तान है 63 पर 1। गायकवाड़ ने फॉर्म को बरकरार रखा, पिछले पैर पर लगा और चलिए यहाँ पर अपील में हामी भरते हुए। और कभी कभी सतह पर घुमाव ना होना ये भी एक अच्छी चीज है, यहाँ पर अनुकूल रॉय ये बिल्कुल साबित करते हुए। जी हाँ, बिल्कुल गेंद सीधी रही, ज्यादा घुमाव मिला नहीं जिसकी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले। और क्रीज में फंस गए खालिद, ना आगे आए ना पीछे गए, और पीछे के पैर पर जब लगता है तो अक्सर अंपायर की उंगली उठने में देरी नहीं होती। इस बार ओ पॉल, करीबी मामला था ये। ट्रैजेक्टरी के चलते वहां पर बैकफुट पर गए, फ्रंट फुट पर रहना था। बल्ले की इधर देख रहे थे अंदरूनी किनारा लगा कि नहीं, वो केवल खालिद ही जानते। 2 पर जितने रन इन्होंने रेड बॉल में बनाए हैं तब थोड़े तकलीफ में थे, लेकिन इस शॉट पर, इस जगह पर कौन सा फील्डर तैनात करेंगे आप? लीडिंग एज, उनको छकाया इस बाउंसर के साथ, लेकिन किसी तरह इमरान को 4 रन मिल गए। थोड़ी सी वहां पर तकनीकी खामी भी नजर आ रही है अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के, जो छोटी गेंद के विरुद्ध वो कैसे खेलते। पहले वहां पर हसन आउट हुए और अब यहाँ ये वो तेज गेंद जिसकी हम बात कर रहे थे, लेकिन जितना तेज बल्ले पे आई उससे ज्यादा तेज ये चौके की तरफ गई। जी हाँ, इस बार ट्रैजेक्टरी बहुत ही फ्लैट किया था वहां पर आयुष बदोनी ने, और लेंथ भी काफी छोटी रखी थी, पहचान लिया था वहां पर। और ये एक ऐसे बल्लेबाज है जैसे आपने इसी आए थे इनिंग्स में कहा कि इनका बहुत शानदार फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड ये दर्शा रहा है। अटैकिंग शॉट्स खेलकर ये एक आक्रामक शॉट बिल्कुल तीर की तरह जाता हुआ अपने निशाने की ओर, बाउंड्री मिलेगी। पिच अब थोड़ा सा स्लो हो गया है, तो बहुत समय था उनको बैकफुट पे रुके हुए थे बॉल आने के लिए। बॉल टर्न हुआ और क्योंकि इतने पीछे गए थे क्रीज में कि उनको समय मिल गया। एक ऐसी दिशा में बॉल भेजा है जहां आमतौर पे फील्डर होंगे ही नहीं। चालाक ये शॉट बाहर का, बाहर आई बाउंड्री की। इस लाइन का एक प्रॉब्लम यही होता है कि स्वीप शॉट्स बहुत लगने लगते हैं और विकेट लेने के चांसेस इस लाइन से कम हो जाते हैं। लेकिन मैं समझ सकता हूं क्यों इस तरह। ओह, शानदार शानदार तरीके से अपना अर्धशतक पूरा किया है इमरान मीर ने। बहुत ही अच्छी पारी है और ये शॉट जो है इससे भी पता चलता है कि किस तरह का अप्रोच रहा है। स्पिन को बहुत अच्छा खेले, सीमस को थोड़ा आक्रामक रवैया अपनाया, अच्छे ड्राइव्स मारे ऑन दी अप। स्ट्राइक रेट देखिए, बहुत कम हमने आज रिवर्स स्वीप किसी भी खिलाड़ी को मारते हुए देखा है, लेकिन बाहिर ने बेहतरीन तरीके से प्रयोग किया। ये कहना पड़ेगा जैसे जैसे खेल चलता गया सालों से मुश्किल होते जा रहा है बॉलर्स के लिए, क्योंकि ये अच्छी गेंदबाजी है। अगर ये बॉल आप देखें तो परफेक्ट लेग स्पिन डाले, लेकिन आजकल इतने उपाय हैं बल्लेबाजों के पास, रिवर्स स्वीप, रिवर्स रैम। क्या वो दूरी मिली है? बिल्कुल मिली है। एक छक्के के साथ ओवर का अंत 147 पर 2। जो और महत्वपूर्ण टारगेट होगा अफगानिस्तान ए के सामने वो है डीएलएस का पार स्कोर। ओह, अच्छे से स्वीप किया इस बार बहीर ने, और इसी के साथ बहीर शाह महमूद के 50 रन पूरे होते हैं। साझेदारी में भी बड़ा हाथ निभाया है और एक अच्छी पारी खेली है। 51 गेंदों में अपना अर्धशतक किया है पूरा। इन्हें अफगानिस्तान में कंक्रीट पिच का डॉन ब्रैडमैन बुलाते हैं, क्योंकि केवल 12 होने वाला था 174, और फिर से एक बार बारिश आ चुकी है। तो पार स्कोर से तो 3 रन आगे हैं अफगानिस्तान ए, 177 पर 2। 174 रन इन्हें बनाने थे, पार स्कोर से तो आगे आ चुके हैं 3 रन से। अगर खेल आगे नहीं बढ़ता है, अगर बारिश नहीं रुकती है, तो अफगानिस्तान ए डीएलएस पार स्कोर के तहत इस मैच को अपने नाम कर लेगा। या शायद वो न्यूज भारतीय टीम की तरफ पहुंच गई है, क्योंकि वो जानते हैं कि डीएलएस पार स्कोर के मुताबिक
3 रन से आगे हैं अफगानिस्तान। बारिश भी काफी वहां पर तेज होते ही जा रही है और कितना कारगर साबित हुआ वो 108 रनों की वो साझेदारी। लाइट भी अभी काफी खराब, बहुत मुश्किल होगा यहां से भारतीय टीम को। बट की परफॉर्मर यकीनन रहे कप्तान इमरान मीर, 75 पर नाबाद, उसके साथ हसन ने भी, खास करके पर खालिद को चलता किया अनुकूल रॉय ने, और फिर इनके बहुत ही प्रमुख बल्लेबाज, मिडिल ऑर्डर के मजबूत बल्लेबाज बाहिर ने 51 खेल के एक बहुत काबिल पार्टनर साबित हुए इमरान के लिए। बिल्कुल सही, 108 रन की वो साझेदारी, और ऐसी वैसी नहीं, धीमी नहीं थी, 99 बॉल्स में। तो एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन जोड़े। और अगर गेंदबाजों को देखें तो अनुकूल रॉय काफी अनुशासित गेंदबाजी की, 1 विकेट अपने नाम की, डॉट बॉल्स